Hello students, कैसे हैं आप सब? I hope all is good and I welcome you all to the class and this is me Ankita. So in today's class we will discuss nucleic acid, okay? The last biomolecule of the unit. Fine. हमने carbohydrates पढ़ लिए, proteins, enzymes and this is a last biomolecule that is nucleic acids. Okay? हमने nucleic acid के बारे में बहुत कुछ already पढ़ा है, right? In our previous classes like 9, 10th में आपने पढ़ा होगा कि there are two types of nucleic acid that is DNA and RNA. Okay? So वही चीज हमको यहाँ पे पढ़नी है. We are going to study some structural properties of nucleic acids. Okay? We are not going in deep, but just structural properties आपको पढ़नी है from organic point of view. Okay? So nucleic acids क्या होते हैं? What are nucleic acids according to you? Yes, we know that nucleic acid are basically which carries the hereditary information from one generation to the another. This are nucleic acid. Yes, that is nucleic acid. Now, what are the functions of nucleic acid then? Yes, of course, nucleic acid is a biomolecule. Or it is a micromolecule which transfer genetic information, right? Which we call as heredity. है ना? हम आपने बहुत जगह सुना होगा जैसे कि हम बोलते हैं कि दिस इज हेरिडिटरी. ओके, हेरिडिटरी डिसीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, राइट? दैट मीन्स कि ये आपके जीन्स में है ना? दिस इज जीन्स, दिस इज कमिंग फ्रॉम द एंसेस्टर्स टू यू. ओके, कभी कभी लोग ऐसा भी बोलते होंगे, कभी किसी ने आपको बोला होगा कि यू आर जस्ट लुकिंग लाइक योर ग्रैंड मदर or you are looking just like your grandfather, right? So that means some of the characteristics of yours is going to match with your ancestors. Okay, your grandpa, your grandma, that is the thing. तो ये कहाँ से आता है? That is because of nucleic acid. Okay, that is because of the genes, genetic information which is transferred from one generation to the another, which is transferred from parent to the offspring. Okay, so that is why there are some genetic disorders, there are hereditary. That means there is something which is related to genes. Okay, so यही हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि what is nucleic acid, right? So लाइफ की ना, लिविंग सेल्स की एक बहुत ही रिमार्केबल प्रॉपर्टीज होती है, दैट इज इट इज एबल टू प्रोड्यूस रिप्लिका. मतलब वो खुद का रिप्लिका बना सकता है. और कब तक? थ्रू द थाउजेंड ऑफ जनरेशन. मतलब बनते ही जाएगा, सेल विल ग्रो, डेवलप एंड दे रिप्रोड्यूस, राइट? सो जब ये रिप्रोड्यूस होगा, ओके, जब ये नया जनरेशन में ट्रांसफर होगा, एट दैट टाइम जो न्यूक्लियस होता है सेल का, ओके, लिविंग सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक जनरेशन की कैरेक्टर्स को हम दूसरे जनरेशन में पास ऑन करें. ओके, सो अभी इसी को हम हेरिडिटरी बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं. ओके, इसी को हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन बोलते हैं, राइट? सो अभी न्यूक्लियस में ऐसा कौन सा पार्टिकल है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ दिस कैरेक्टर्स? ओके, दैट इज क्रोमोसोम. दैट इज क्रोमोसोम. अभी क्रोमोसोम is the particle in the nucleus of the cell which is responsible for the heredity. Okay, now chromosome में there is nucleoprotein. nucleoprotein मतलब उसमें प्रोटीन होगा और उसमें क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड होगा. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज न्यूक्लियोप्रोटीन. मैंने ये प्रोटीन वाले पार्ट में बताया था आपको, है ना? सो अभी प्रोटीन भी है, न्यूक्लिक एसिड भी है. नाउ ईच क्रोमोसोम has different DNA. Okay, और उस DNA में there are different genes. मतलब it is मतलब हम ये बोल सकते हैं कि it is made up of genes. Okay, and that gene, the sequence of gene in particular DNA that is responsible for the characteristics, okay, of the living cell. Fine, that sequence of the gene is responsible. नाउ जैसे हमने प्रोटीन में पढ़ा था, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर चेंज हो जाएगा तो कैरेक्टर्स चेंज हो जाएगी, हो सकता है प्रोटीन इनएक्टिव हो जाए, है ना? उसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड का होता है. अगर वो जीन के सीक्वेंस में कहीं भी थोड़ा बहुत चेंज आता है जिसे हम म्यूटेशन बोलते हैं, राइट, सडन चेंज हो जाता है,
तो दैट विल लीड टू द डिसऑर्डर्स. ओके, और फिर एक बार म्यूटेशन हो गया तो वही जीन आगे की जनरेशन में पास ऑन होगा और फिर वो डिसऑर्डर वैसा ही रहेगा. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जेनेटिक डिसऑर्डर्स. ओके, now there are two types of nucleic acid, deoxyribonucleic acid, right, जिसे हम बोलते हैं DNA, and another one is ribonucleic acid, that is RNA, right. Now why it is known as nucleic acid? Have you ever thought of it? Nucleic acid क्यों बोला गया इसे? Because these are micromolecule, first of all. Second thing, they come from nucleus of the cell. कहाँ से आ रहे हैं? They come from nucleus of the cell and they are acidic in character. वो मतलब उनकी properties जो है that is acidic. So that's why it is known as nucleic acid. Understood? So if someone asks you what is the definition of nucleic acid, so how will you define it? Now there is one more function of nucleic acid. Before define, let me tell you there is one more function of nucleic acid and that is protein synthesis. ठीक है, एक तो होता है to transfer genetic information and another one is that is protein synthesis. So what is the definition of nucleic acid? How will you define nucleic acid? So nucleic acid is a biological polymer, okay, which is present in living cell. Fine, which is present in living cells and responsible for synthesis of protein and transfer of genetic information, that is heredity transfer. Okay, now since the nucleic acid जो है it is made up of nucleotides, किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से बना है. That's why they are also called as polynucleotides. ठीक है, पॉलीमर है, इसका मोनोमर कौन सा है? न्यूक्लियोटाइड्स. यू कैन ऑल्सो से दैट कि न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर न्यूक्लिक एसिड्स DNA एंड RNA. फाइन, एंड बिकॉज ये बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बना है, इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. अंडरस्टूड? आई होप दिस मच इज क्लियर. आपको देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA. मोनोमर कौन सा है? न्यूक्लियोटाइड है. दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. ठीक है, now this is a central dogma of life, like हमारे इसमें DNA है, right? तो अभी DNA ने रेप्लिकेट किया खुद को, right? रेप्लिकेट करना मतलब खुद के जैसा एक नया कुछ बनाना, रेप्लिका, सेम, आइडेंटिकल, राइट. तो DNA का अगर रेप्लिकेशन होता है तो फिर से क्या बनेगा? DNA ही बनेगा. लेकिन DNA से अगर RNA बनाना है तो क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा. क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा. जस्ट रिमेंबर द टर्म कि इफ DNA से RNA बन रहा है तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है. और अगर DNA से प्रोटीन बन रहा है तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ट्रांसलेशन हो रहा है, राइट. तो दैट्स व्हाई एक और फंक्शन इसीलिए मैंने बोला था, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, राइट. तो अल्टीमेटली देखो, DNA से RNA बना ट्रांसक्रिप्शन से, RNA से प्रोटीन बना किससे? ट्रांसलेशन से, राइट. डोंट गो, हमें केमिस्ट्री में इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है. डेफिनेटली आप बायोलॉजी में ये सारी चीजें पढ़ ही लोगे. ठीक है, सो ये चीज होती है. DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है. अगर DNA का रेप्लिकेशन होता है तो वापस से DNA ही बनेगा. DNA, ठीक है. एंड दिस इज अमेजिंग प्रॉपर्टी ऑफ DNA कि इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ. ठीक है, वो फिर से नया DNA बना सकता है जो उसी का आइडेंटिकल हो. फाइन. सो अभी देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड. स्ट्रक्चर देखते हैं न्यूक्लिक एसिड का. फाइन. मोनोमर्स कौन से है? न्यूक्लियोटाइड्स है. तो अगर ये न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA न्यूक्लियोटाइड से बना है तो हमें न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा ना, राइट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ओके, इसमें क्या क्या है? इसमें पेंटोज शुगर है, ओके, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है एंड फॉस्फेट है. ठीक है, तो इसमें three most important things which you have to remember which is present in nucleotide is pentose sugar, sugar है which is ribose sugar. इसीलिए हम नाम में लिखते हैं डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइट. राइबो लिखते हैं हम, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट ना. तो यही चीज आपको याद रखनी है कि जो शुगर है, जो पेंटोज शुगर प्रेजेंट है, दैट इज राइबोस शुगर. कौन सी शुगर है? राइबोस. और राइबोस का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट में पढ़ चुके हैं. कितने कार्बन कंटेनिंग है?
इट इज 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, राइट। तो ये राइबोस शुगर है। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होना चाहिए, ये यहाँ पे बेस दिया है, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ओके तो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है। एंड फॉस्फेट है, दिस इज योर फॉस्फेट ग्रुप, ओके। तो जब ये तीनों ग्रुप मिलेंगे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ओके। बट वन मोर थिंग, जब आपके पास शुगर है, ओके, सिर्फ इतना ग्रुप है, शुगर और आपका बेस, ओके, इतना जो पार्ट है इसको बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोसाइड। तो अगर किसी ने एग्जाम में पूछ लिया या एमसीक्यू आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोसाइड, ऑप्शंस में होगा बेस प्लस शुगर, शुगर प्लस फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, राइट, एंड बेस प्लस फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोसाइड इज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, शुगर that is pentose sugar plus nitrogenous base is nucleoside. And when the phosphate group is come and attached to this nucleoside, there is a formation of nucleotide. आगे समझ में? तो न्यूक्लियोटाइड इज न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। जब तक फॉस्फेट नहीं आएगा दैट इज नॉट न्यूक्लियोटाइड, ओके। जब फॉस्फेट आ जाएगा टू द शुगर एंड बेस दैट इज न्यूक्लियोटाइड, और सिर्फ अगर शुगर और बेस है तो दैट इज न्यूक्लियोसाइड, ओके। सो अभी हम एक एक कंपोनेंट को अच्छे से पढ़ेंगे। सो पेंटोज शुगर है ना, आरएनए में और डीएनए में, और दोनों में कौन सी है? राइबोस शुगर है, राइट। लेकिन जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो हम लिखते हैं डीऑक्सी राइबोस। जब हम डीएनए में का नाम लिखते हैं तो हम लिखते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर, और जब हम आरएनए में लिखते हैं तो इट इज राइबोस शुगर। तो ऐसा क्या डिफरेंस है ना। तो अभी देखो ये फ्यूरानोस फॉर्म है, शुगर का कौन सा फॉर्म है? फ्यूरानोस फॉर्म है ना, हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा है, राइट। तो सेकेंड पोजिशन पे देखो, सेकेंड कार्बन पे इन केस ऑफ आरएनए देयर इज OH, ठीक है। सेकेंड पोजीशन के कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? राइबोस शुगर में OH प्रेजेंट है इन केस ऑफ आरएनए। इन केस ऑफ डीएनए जो शुगर है उसमें सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन क्या है? अब्सेंट है, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डीऑक्सी। डी मतलब नहीं है, राइट। वी कॉल डिहाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन निकल गया, तो डीऑक्सी मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ पे सिर्फ क्या है? हाइड्रोजन है। सो दैट्स व्हाई ये याद रखना कि डीएनए में जो शुगर है वहां पे सेकेंड पोजीशन में देयर इज नो ऑक्सीजन, ओके, दैट इज डीऑक्सी। इन केस ऑफ आरएनए देयर इज OH ग्रुप एट सेकेंड पोजीशन। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम होगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम होगा, सिर्फ देयर इज अ डिफरेंस एट सेकेंड पोजीशन ऑफ कार्बन, दैट इज इन केस ऑफ आरएनए देयर इज OH ग्रुप एंड इन केस ऑफ डीएनए देयर इज ओनली हाइड्रोजन, ओके। नाउ ये जो नंबरिंग दी है ना, ये प्राइम में दी है, मतलब 1 प्राइम 2 प्राइम, प्राइम मतलब ये इसे बोला गया है प्राइम, ओके। तो ये इसीलिए दिया है, सिंपल 1 2 3 4 इसलिए नहीं दिया है क्योंकि हमारे पास क्या है? हमारे पास बेस भी है, तो हमें इसे भी नंबरिंग करनी पड़ेगी ना, 1 2 3, राइट। तो इस तरीके से अगर हम इसको नंबरिंग करेंगे और यहाँ पे भी हम 1 2 3 नंबरिंग करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसका सेकंड है, शुगर का सेकंड है या बेस का सेकंड है, राइट। सेकेंड कार्बन एटम किसका है? बेस का है, शुगर का है। तो ये कंफ्यूजन ना हो, टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन we are going to change the numbering of sugar, that is we are going to number it as 1 prime 2 prime 3 prime 4 prime, इस तरीके से 5 prime, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस को जब हम नंबरिंग करेंगे तो we will done it in simple way, that is 1 2 3 4, ओके। समझ में आ गया प्राइम का डिफरेंस? यहाँ पे लिखा है sugar carbons have prime numbers to distinguish them from the atoms and bases, okay, this is the reason why we are using prime numbers. अभी नाइट्रोजन बेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस जो होता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स में प्रेजेंट है, न्यूक्लियोसाइड में प्रेजेंट है, राइट। तो वो जो है देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट क्लास इज प्यूरिन्स, फर्स्ट क्लास इज प्यूरिन्स। अभी जो प्यूरिन्स होते हैं ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, इसमें 2 रिंग है,
ठीक है। और सेकेंड क्लास इज पिरिमिडिन्स, जिसमें जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें सिंगल रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग वी कैन कॉल। तो अभी जो प्यूरिन्स है जिसमें जो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ओके, जिसमें दो ग्रुप्स होते हैं, मतलब देर आर टू टाइप्स ऑफ प्यूरिन्स वी कैन सी, देर आर टू नाइट्रोजिनस बेसिस विच कम्स अंडर प्यूरिन्स, तो दैट इज एडेनिन एंड गुआनिन। कौन से है? एडेनिन है और गुआनिन है। फाइन। जो पिरिमिडीन्स में आते हैं विच कंटेन सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर जिसमें है, दैट इज साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल। ओके, तो अभी जो साइटोसिन है ये डीएनए आरएनए दोनों में प्रेजेंट है, जो थाइमीन है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट है, और जो यूरेसिल है वो किस में प्रेजेंट है? आरएनए में प्रेजेंट है। देयर आर 4 नाइट्रोजिनस बेस विच इज प्रेजेंट इन डीएनए। ओके, पहला है एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन, तीसरा है थाइमीन और चौथा है साइटोसिन। ठीक है, डीएनए में 4 नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट है, दैट इज एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन एंड साइटोसिन। In case of RNA, again there are 4 nitrogenous bases, that is adenine, guanine, cytosine and uracil. ठीक है, तो आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है और डीएनए में थाइमीन प्रेजेंट होता है। ओके, दिस इज द डिफरेंस। इन आरएनए थाइमीन की जगह यूरेसिल होगा और इन डीएनए यूरेसिल की जगह थाइमीन होगा। ठीक है, नाउ just try to memorize the structure also. Okay, pyrimidine का जो structure है, अब देख सकते हो थाइमीन में there is CH3 group, okay, and same structure यूरेसिल का है, सिर्फ CH3 group नहीं है यहाँ पे। okay, तो आप ऐसे याद कर सकते हो स्ट्रक्चर को। इन केस ऑफ साइटोसिन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, और यहाँ पे अमीन ग्रुप है, राइट, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे। सो दिस इज हाउ यू लर्न, मतलब एक सिंपल रिंग याद कर लीजिए, एन एन एन, यहाँ पे कीटो ग्रुप है और यहाँ पे एन है, राइट, यहाँ पे दो में कीटो ग्रुप है और यहाँ पे अमीनो ग्रुप है। ओके, इन केस ऑफ प्यूरिन ऑल्सो, इन केस ऑफ एडेनिन एंड गुआनिन, एडेनिन में अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, और इन केस ऑफ गुआनिन यहाँ पे कीटो ग्रुप है और यहाँ पे अमीनो ग्रुप है। ओके, बाकी रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज द सेम, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है। ओके, सो ट्राई टू मेमोराइज द स्ट्रक्चर, दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल, क्योंकि कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है एमसीक्यूज में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूरेसिल, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुआनिन, तो आपको स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, तभी आप सही आंसर टिक कर पाओगे। ओके, नाउ अभी हमें देखना है, हमने ये तो बोल दिया कि जो न्यूक्लियोटाइड से बना है हमारा न्यूक्लिक एसिड, हमें न्यूक्लियोटाइड भी पता चल गया कि इट इज फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस बेस, राइट। तो अभी हमें ये देखना है कि ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये कैसे पॉलीमर बना रहे हैं, राइट। मोनोमर हमारा न्यूक्लियोटाइड है, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, दिस इज योर सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। तो हाउ दे विल फॉर्म बॉन्ड विथ ईच अदर टू फॉर्म अ चेन, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने के लिए कैसे बनेंगे, राइट। और इसमें जो चेन बनती है दैट इज ईस्टर चेन, पॉली ईस्टर चेन बनती है, क्योंकि जो बॉन्ड बन रहा है बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड दैट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, अभी हम देखते हैं क्या हो रहा है। ये शुगर है, दिस इज योर थर्ड कार्बन आइटम ऑफ शुगर, जहां पे कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप है। ओके, एंड दिस इज योर फिफ्थ कार्बन, यहाँ पे भी है, जिसको कौन सा अटैच है? फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो याद रखना, इफ समवन आस्क कि फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे अटैच है, तो फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच टू द फिफ्थ कार्बन ऑफ योर राइबोस शुगर, ऑफ योर पेंटोज शुगर, डीऑक्सी शुगर और राइबोस शुगर, ठीक है। तो जब ये दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, तो दिस OH ग्रुप, ओके, एंड द फॉस्फेट ग्रुप, ये फॉस्फेट ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड will react with 3 prime carbon atom which contain OH group of sugar, ठीक है। तो यहां से OH और यहाँ पे भी आपका OH रहेगा, राइट, तो H2O यहां से रिमूव हो जाएगा, फाइन, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड,
ठीक है, किसके बीच में? 3 प्राइम एंड फॉस्फेट के बीच में, विच इज अटैच टू 5 प्राइम। ठीक है, फॉस्फेट किसको अटैच्ड है? 5 प्राइम कार्बन को अटैच्ड है। और ऑक्सीजन जो फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बना रहा है वो किसको अटैच्ड है? दैट इज अटैच्ड टू 3 प्राइम कार्बन। ठीक है, तो जब आपकी चेन खत्म हो जाएगी, मतलब कंसिडर इसके ऊपर अभी कोई रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, ठीक है, तब यहाँ पे फ्री CH2 ग्रुप है, मतलब ये आगे बॉन्ड नहीं बना रहा, तो इसको बोलते हैं फ्री 5 प्राइम फॉस्फेट। मतलब फॉस्फेट यहाँ पे फ्री है, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं कर रहा है। नाउ अगर हम इस फॉस्फेट की बात करें तो ये फॉस्फेट फ्री नहीं है, राइट? दिस इज फॉर्मिंग बॉन्ड विथ योर शुगर मॉलिक्यूल ऑफ सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। ओके, अभी हम ये बोलेंगे ये नीचे से भी बॉन्ड बना सकता है, द चेन विल कंटिन्यू ना, ये ऊपर अगेन फिर शुगर से बॉन्ड बनाएगा, ये नीचे 3 प्राइम फिर नीचे फॉस्फेट से बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जहां पे चेन खत्म हो जाएगी, जहां पे आपका ये बॉन्ड नहीं बनाएगा फॉस्फेट के साथ, वहां पे हम बोलेंगे फ्री 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल। मतलब ये ग्रुप फ्री है, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, राइट? इन केस ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो बैकबोन होता है ना आपका न्यूक्लिक एसिड का, दैट गोज समथिंग लाइक, ये फॉस्फेट है, ओके, ये किसको अटैच्ड है? ये शुगर को अटैच्ड है, राइट? और शुगर किसको अटैच्ड है? शुगर इज अटैच्ड टू द बेस। ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। अभी इस शुगर मॉलिक्यूल का कौन सा ग्रुप? 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल, राइट? किसको अटैच्ड होगा? किसको अटैच्ड होगा? 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा? फॉस्फेट आ जाएगा, राइट? फिर यहाँ पे ये फॉस्फेट किसको अटैच्ड है? शुगर को अटैच्ड है। शुगर किसको अटैच्ड है? बेस को अटैच्ड है, राइट? एंड द चेन विल कंटिन्यू। फिर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच करेगा इसके 3 प्राइम और इसका, फिर यहाँ पे बेस आ जाएगा, राइट? और ये चेन यहाँ पे भी कंटिन्यू होगी। तो दिस इज द बैकबोन, ये बैकबोन है आपके न्यूक्लिक एसिड का, राइट? तो दिस इज हाउ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज फॉर्म। ओके, ये मोनोफॉस्फेट बना है, ठीक है, मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हुआ है, द टू न्यूक्लियोटाइड्स इज अटैच्ड बाय दैट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, सो यही चीज आपको याद रखनी है। फाइन, आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ अभी ये देखो, ये जो शुगर है ना, शुगर का सेकेंड प्राइम, मतलब एनोमेरिक कार्बन, सॉरी फर्स्ट 1 प्राइम, एनोमेरिक कार्बन जो है वो आपके बेस को अटैच रहेगा, ठीक है? बेस किसको अटैच्ड है? बेस कौन से प्राइम एटम ऑफ शुगर को अटैच्ड है? तो इट इज अटैच्ड टू द एनोमेरिक कार्बन। ओके, इन केस ऑफ प्यूरिन, प्यूरिन के केस में जो है ये वाले नाइट्रोजन एटम से अटैच्ड होगा आपका शुगर मॉलिक्यूल, ओके? और इन केस ऑफ पिरिडिन, ये वाले नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से आपका अटैच होगा क्या? शुगर। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर। सो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड समझ में आ गया सबको? फाइन, नाउ लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, जस्ट आपको पता होना चाहिए, इसलिए बताया जा रहा है कि जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, अगेन दैट इज अंडर 4 लेवल, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है डीएनए का, दैट इज बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, which is responsible for the transfer of genetic information. So that gives you the primary structure. Okay, what is the sequence of nucleotides? In what way they are arranged in nucleic acid? ठीक है, तो that is your primary structure. Now next is double helix. Double helix structure is given by or is proposed by Watson and Crick. ठीक है, it was proposed by Watson and Crick. Now अभी इस डबल हेलिक्स में क्या बोला गया है? जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है, इट इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है, डबल स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड है, विच आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, ठीक है? ये देखो, ये एक स्ट्रैंड है और ये आपका दूसरा स्ट्रैंड है जो एक दूसरे के अराउंड कॉइल हुआ है, ओके, टू गिव यू अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर।
ठीक है, एंड दिस इज राइट हैंडेड स्ट्रैंड. फाइन. नेक्स्ट is the anti-parallel strand. They run anti-parallel to each other. मतलब एक अगर 3 प्राइम 5 प्राइम जा रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड 5 प्राइम 3 प्राइम जाएगा. मतलब देखो ये 3 प्राइम है, 3 प्राइम है, मतलब यहाँ पे कौन सा ग्रुप फ्री है? यहाँ पे 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है. ओके फाइन. और ये 3 प्राइम से नीचे जा रहा है तो नीचे कौन सा ग्रुप आएगा? 5 प्राइम फ्री रहेगा. 5 प्राइम phosphate group which is attached to the 5 prime carbon atom. okay, तो जो दूसरा स्टैंड है वो कैसे रन होगा? 5 प्राइम, मतलब यहाँ पे कौन सा ग्रुप फ्री है? 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप फ्री है. ओके और 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे फ्री है. राइट, सो दैट्स व्हाई दे रन एंटी पैरेलल. नेक्स्ट इज दे आर नॉट आइडेंटिकल बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. नाउ हाउ वी कैन से दैट? सो उसके लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि नाइट्रोजनस बेसिस जो है दैट इज एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन. ओके, सो जो एडेनिन है, ऑलवेज रिमेंबर प्यूरिन इज पेयर्ड विथ pyrimidine. One purine nitrogenous base is paired with pyrimidine nitrogenous base. ठीक है, कभी प्यूरिन प्यूरिन के साथ पेयर नहीं करेगा, कभी pyridine pyrimidine के साथ पेयर नहीं करेगा. ठीक है, तो अभी इसमें से प्यूरिन कौन से है? एडेनिन इज प्यूरिन, राइट. और कौन सा प्यूरिन है? गुआनिन इज प्यूरिन. बचे हुए दो कौन से है? pyrimidine. तो जो एडेनिन है दैट विल पेयर विथ थाइमीन ऑलवेज विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, with 2 hydrogen bonds. Okay, and guanine will always pair with cytosine with 3 hydrogen bond. This is the pairing of nitrogenous bases in DNA. ठीक है, एडेनिन थाइमीन के साथ बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन के साथ बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, सो अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस वाले स्ट्रैंड पे, ठीक है, ये वाले स्ट्रैंड पे यहाँ पे है आपका एडेनिन, रेड कलर है ना, सो दिस इज योर एडेनिन. ओके, दिस इज योर थाइमीन, येलो कलर है, एंड ब्लू कलर है, दिस इज योर गुआनिन. ओके, ये यहाँ पे येलो कलर दिख रहा है आपको, दिस इज योर थाइमीन. राइट, so you know the nitrogenous basis which is present on one strand. So by knowing that nitrogenous basis we can easily identify the pairing of that nitrogenous basis which is present on another strand. right, अभी मैंने आपको बोला एडेनिन किसके साथ पेयर होगा? थाइमीन के साथ हमेशा. तो देखो रेड के साथ येलो आ गया, तो हियर इट इज थाइमीन. ये थाइमीन है तो यहाँ पे क्या आएगा? एडेनिन आएगा. है वहां पे एडेनिन. ये देखिए ब्लू कलर है, गुआनिन है, ग्रीन कलर साइटोसिन से पेयर हो गया, हो गई पेयरिंग. सो दैट इज व्हाई दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, यहाँ पे एडेनिन होगा तो यहाँ पे थाइमीन होगा, यहाँ पे थाइमीन होगा तो एडेनिन, यहाँ पे साइटोसिन होगा, देखो यहाँ पे साइटोसिन होगा तो यहाँ पे गुआनिन होगा. आई चीज समझ में? सो दैट्स व्हाई दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. ऑलवेज रिमेंबर प्यूरिन विल पेयर विद pyrimidine. इन केस ऑफ आरएनए, अगर हम आरएनए की बात करें तो गुआनिन विल पेयर विद साइटोसिन बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, बट जो एडेनिन होता है वो यूरासिल के साथ पेयर होता है, थाइमीन के साथ नहीं. ठीक है, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. ठीक है, बट जब वहां पे कॉइल होता है, वो कहीं कहीं पे अगर कॉइल होता है तो वहां पे ये वाली पेयरिंग होगी. ठीक है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, अगर कहीं पे पेयरिंग होती है तो इट इज हैपन इन दिस वे. फाइन, क्योंकि उसमें थाइमीन नहीं होता, उसमें यूरासिल होता है. फाइन, टू स्ट्रैंड्स जो है दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिकॉज नाइट्रोजनस बेसिस आर बॉन्डेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. राइट, नाउ सम स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं. ये जो ग्रुप है ना, ये वाला दिस पार्ट, इसे बोलते हैं मेजर ग्रुप. ओके, और ये जो है दिस वन, ओके, और दिस वन, दिस इज नोन एज माइनर ग्रुप. इसे क्या बोलते हैं? माइनर ग्रुप. फाइन, नाउ ईच टर्न, मतलब यहां से लेके यहां तक, ईच टर्न of helix is 34 angstrom unit, is 34 angstrom unit. Each turn contain 10 base pair. हर एक टर्न में कितने बेस पेयर है?
10 बेस पेयर है, काउंट कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5, ओके, 6 7 8 9 and 10. Fine. So this is what each turn में 10 base pair है and the difference between each base pair, okay, हर एक base pair का इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है that is 3.4 angstrom unit, okay, and the width, ये इसकी जो width है that is of 20 angstrom unit. ये प्लीज याद रखिएगा मेजरमेंट्स, ओके, नो डाउट आप बायोलॉजी में तो ये सारी चीजें पढ़ ही लोगे, बट फिर भी ठीक है, तो इसको थोड़ा 3D में पढ़ लेते हैं। अभी देखिए ये जो हेलिक्स है, जो आउटर पार्ट है, दैट इज मेड अप ऑफ योर शुगर, ये शुगर मॉलिक्यूल है, पेंटोज शुगर है, एंड दिस इज योर फॉस्फेट, राइट। और जो अंदर का पार्ट है ना, दैट इज हाइड्रोफिलिक, ठीक है, दिस इज हाइड्रोफिलिक, सॉरी दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, जो अंदर का पार्ट है। और ये जो स्ट्रैंड्स पे है, जो स्ट्रैंड है ना आपका, वो किससे बना है, दैट इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन, दिस इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन एंड दिस इज हाइड्रोफिलिक, ओके। सो न्यूक्लियोटाइड शुगर और फॉस्फेट यहाँ पे प्रेजेंट है, और अंदर के जो बेसिस है, देखो साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है विथ ग्वानिन, एडेनिन विथ थाइमीन, राइट, इन दिस वे। सो ये जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, फाइन। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। 3 प्राइम 5 प्राइम आपको समझ में आ गया है। दे रन एंटी पैरेलल, मतलब एक स्ट्रैंड अगर 3 प्राइम 5 प्राइम जा रहा है, मतलब एक स्ट्रैंड के अपर में, ऊपर साइड में अगर 3 प्राइम ग्रुप फ्री है, राइट, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, तो उसके नीचे वाले में कौन सा ग्रुप फ्री होगा, 5 प्राइम फ्री होगा। अगर दूसरे स्टैंड में, एक स्टैंड में 3 प्राइम फ्री है ऊपर, तो दूसरे में 5 प्राइम फ्री होगा ऊपर। मतलब एक का अगर आप सीधा स्ट्रक्चर निकालोगे तो एक का उल्टा न्यूक्लियोटाइड आपको निकालना पड़ेगा, ओके। सो दिस इज व्हाट अबाउट डीएनए। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, उसमें भी नाइट्रोजनस बेसिस है, 4 नाइट्रोजनस बेसिस है, राइट, न्यूक्लियोटाइड से बना है, तो हमने देख ही लिया है न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ये तो हमको पता ही है। नाउ जो डीएनए होता है ना, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, ओके। फर्स्ट होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और दूसरा होता है सेल्यूलर डीएनए, ठीक है। डीएनए मेनली प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड देन सेल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है तो सेलुलर डीएनए भी बोलते हैं उसे। देन इट इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। जो आरएनए होता है, इट प्रेजेंट इन साइटोप्लास्ट, it present in cytoplasm. There are 3 types of RNA. One is mRNA, दूसरा होता है that is tRNA, तीसरा होता है वो होता है rRNA, ठीक है, rRNA, फाइन। mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए, जो मैसेज कन्वे करता है। tRNA इज ट्रांसफर आरएनए, जो अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बनेंगे। तो जिस तरह की इंफॉर्मेशन mRNA लेकर आएगा फ्रॉम द डीएनए, राइट, जिस तरह के जीन जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकर आएगा, उसी तरह के अमीनो एसिड जाएंगे एंड दे विल फॉर्म प्रोटीन, ठीक है। And next is RNA, that is ribosomal RNA, okay. I hope this much is clear to every one of you. There are 2 types of DNA and there are 3 types of RNA, okay. Now जो bases present होते हैं ना डीएनए में, sometimes they are called as like, जो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है in your what, in your DNA, so they are called as like DAMP, राइट, इसको बोलते हैं डी, स्मॉल डी इज स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबो शुगर, ठीक है। दिस ए इज फॉर एडिनिन, जो आपका नाइट्रोजनस बेस है, एंड दिस एमपी इज मोनोफॉस्फेट, ओके। सो जब आपका पूरा न्यूक्लियोटाइड है, जो एडिनिन है, जिसमें शुगर कौन सी है, डीऑक्सी शुगर है, डीऑक्सी शुगर है, जो आपका बेस है दैट इज एडिनिन, और जो आपका फॉस्फेट है वो उसको अटैच्ड है, ठीक है, तो दैट इज मोनोफॉस्फेट। सो जो भी न्यूक्लियोटाइड डीएनए में प्रेजेंट होंगे वो ऐसे ही नेमिंग किया जाता है, लाइक डी एएमपी, डी एडेनाइन मोनोफॉस्फेट, देन डी ग्वानिन मोनोफॉस्फेट,
साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, थाइमीन मोनोफॉस्फेट, राइट। तो ये वाली चीज होती है। आपने सुना होगा एटीपी जो आप बोलते हो, दैट इज एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब उसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है और बेस कौन सा है, एडेनिन है, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? So in DNA, it is double-stranded nucleic acid, right? It is ladder-like structure or ladder जैसे होता है ना जिसमें strands होते हैं बीच में, that is your nitrogenous base pairing, okay? RNA is single-stranded nucleic acid. In DNA, deoxyribose sugar होता है, RNA में ribose sugar होता है. It contains thymine as a nitrogenous base. RNA में uracil. डीएनए का काम है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी मटेरियल ट्रांसफर करना सेल से, राइट। और आरएनए का काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन डीएनए आरएनए को देगा, जो इंफॉर्मेशन जो जेनेटिक हेरिडिटरी ट्रांसफर होगा डीएनए से आरएनए में, उसी तरीके का उसी इंफॉर्मेशन रिलेटेड प्रोटीन आपका बनेगा, ठीक है। अगर इससे थोड़ा सा भी मिसकोड हो गया, होता नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट दैट इजी, ओके। लेकिन अगर जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, थोड़ा सा म्यूटेशन हो गया तो दैट विल लीड टू डिसऑर्डर, ओके। इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, डीएनए, और जो आपका आरएनए है इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ओके। सो नाउ आरएनए आपको वायरसेस में मिलता है। आपने कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल पता है आपको? बहुत कोरोना कोरोना पढ़ रहे हो, जेनेटिक मटेरियल पता है कोरोना वायरस का? इट इज आरएनए, ठीक है, इट इज आरएनए। सो ये आपको पता होना चाहिए, द डिफरेंस यू मस्ट नो, ओके। सो दैट इज व्हाई न्यूक्लिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी बिकॉज ऑफ द हेरिडिटरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर हो